everyone, welcome to my channel Milestones in Biology. So today I'm starting with a new topic, that is operon, lac operon. In my previous video I have given you an idea about operon system. Now in depth I'm going to teach you about this lac operon. So as you know, the lac means lactose and operon means segment of DNA, which is self-regulatory. In this, and next important about is, it is an inducible operon. So inducible operon means maximum time they are switched off. They will get switched on only when the inducer will be there in their surrounding. जब inducer होगा, जब वो chemical होगा, तभी ये active होते हैं. In this case, the inducer is lactose. Lactose की presence में ही they will become active. So to make you understand this, I need to draw it. This is a segment. The segment has many. This is P. This is small I. This is again P. This is O. This is Z. Y, A. We have to write like this. Z, Y and A. This portion is known as let me not write here. So first one, that I indicates the regulatory site or regulatory sequence. Fine, that is a segment of this operon. ये जो regulatory sequence है, it is going to produce repressor and that repressor will join operator sequence. Fine. अब ये जो I है, this I is going to make mRNA. This mRNA is going to make, this is a repressor protein. This repressor protein will go and bind to this operator. Fine. Because of that, यहाँ जो RNA polymerase है, इस धर जो RNA polymerase है, that will not able to move further and there will be no transcription. Fine. No transcription because of this repressor protein. So regulatory जो sequence है, that is going to make, I मतलब regulatory sequence, that is going to make a repressor protein and repressor protein will join to the operator. Now let's talk about the next one. This is promoter. Promoter वो sequence है where RNA polymerase will initiate the transcription. यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. RNA polymerase will join this segment to initiate the transcription process. तो ये जो P वाला है, यहाँ पे RNA polymerase आके यही साइट है जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं and then तो हम इसको रिकॉग्निशन साइट बोल सकते हैं बाय RNA polymerase. फिर आता है ऑपरेटर. थर्ड वन इज ऑपरेटर. ये है, ये वाला जो पोर्शन है O, दैट इज द ऑपरेटर. लेट मी राइट हियर. प्रमोटर P and regulatory is I.
सो ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर की स्पेशलिटी है फ्रॉम, दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन will initiate and regulates structural gene. जो structural gene है इसको ये regulate करता है. यहां पे आप देख सकते हैं 3 structural gene मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूं. अगर ये प्रोकैरियोट है तो ऑब्वियसली पॉलीसिस्टोनिक होगा. पॉली मीन्स मेनी, प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट है. सो देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन. ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन. ये आपको बहुत अच्छे से पता है. दीज स्ट्रक्चरल जीन, देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन, 3. दिस विल फॉर्म इट्स mRNA and this mRNA is going to make beta galactosidase एंजाइम. ये एंजाइम क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा. इन शॉर्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज. फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं. ये जो है, दिस इज गोइंग टू मेक इट्स mRNA and this mRNA is going to make permease enzyme. This enzyme is having function that it allows lactose entry or permeability इन सेल में इसको परमिएबल करता है, लैक्टोज को एंट्री देता है, वो है परमिएज एंजाइम. नेक्स्ट, लास्ट वन इज दिस is going to, this gene is going to make, this structural gene is going to make its mRNA. mRNA is going to make a protein transacetylase. This enzyme, galactose transacetylase, this enzyme is having no function in lactose hydrolysis. लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस में इसका कोई फंक्शन नहीं है. सो आप देख सकते हो कि ये 3 एंजाइम, 3 जीन जो हैं, 3 डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे हैं. बट ये जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, इनका एक ही रेगुलेटरी पॉइंट है, एक ही रेगुलेटर है जो इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन लैक्टोज एब्सेंट. जब लैक्टोज एब्सेंट होगा उस केस में ये जो रेगुलेटरी जीन है, इट विल प्रोड्यूस mRNA. mRNA ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑपरेटर को जाके बाइंड कर दिया. ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर क्या है? सीक्वेंस, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, मींस गिविंग पैसेज टू पॉलीमरेज. ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम को एक पैसेज देता है और उससे वो इन जीन्स को कंट्रोल करता है ऑपरेटर. तो इस रिप्रेसर ने जाके ऑपरेटर को बाइंड कर दिया, जिसके वजह से जो ये mRNA है वो आगे नहीं बढ़ पाया एंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ. सो व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, नो ट्रांसक्रिप्शन. फाइन. सेकेंड सिचुएशन होती है व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट. ठीक है, अब मैं इसको छोटे से डायग्राम से बताती हूं आपको. सपोज देयर इज अ बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बाहर यहां पे लैक्टोज प्रेजेंट है और यहां पे ये ओपेरॉन प्रेजेंट है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो पहले से ही कुछ परमिएज एंजाइम प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, those permease enzyme will allow the movement of lactose in the cell
and then it will initiate the process. अब वो क्या प्रोसेस है? लैक्टोज को परमिएज ने अंदर आने दिया. जैसे ही परमिएज अंदर आया, इस लैक्टोज ने आके रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर लिया. दिस इज द लैक्टोज. लैक्टोज ने रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर लिया. उसकी वजह से ये इसका शेप चेंज होने की वजह से इट वॉज नॉट एबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर. ऑपरेटर को बाइंड नहीं हुआ. उसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है दैट हैज मूव्ड फर्दर एंड एमआरएनए बना एंड वी गॉट दीज 3 एंजाइम्स. ये तीनों एंजाइम्स जो है एमआरएनए के बाद, ट्रांसलेशन के बाद हमको मिल जाता है. सो लैक्टोज के प्रेजेंस में ये जो ओपेरॉन है वो ऑन हो गया और ऑन होने के बाद उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ट्रांसलेशन करने के बाद प्रोटीन्स बनाए, एंजाइम्स बनाए एंड प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया. जैसे ही लैक्टोज उनके मीडियम में बैक्टीरिया के आसपास फिनिश होता है, वापस से ये जो ओपेरॉन है ये शट डाउन हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लैक ओपेरॉन, a system, an operon which is regulated by the presence or absence of this lactose. तो यहाँ जो lactose है, ये lactose का काम क्या है? Lactose is acting as a inducer. लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर है, वो प्रोसेस को इंड्यूस कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है. वेयर एज दिस आई इज प्रोड्यूसिंग अ रिप्रेसर प्रोटीन जो प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है. सो लेट मी गिव यू अ क्विक recap of the topic. Lac operon is a system which is controlled by presence or absence of lactose. ये जो है ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है जो मैक्सिमम टाइम स्विच ऑफ रहता है, बट इंड्यूसर की प्रेजेंस में ही ये ऑपरेट करता है और इनका इंड्यूसर लैक्टोज है. ओपेरॉन जो है इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो 3 अलग अलग एंजाइम्स बनाते हैं. बीटा गैलेक्टोसाइडेज, प्लीज ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है और Z, Y और A ही लिखना है. अगर आप यहाँ पे X लिख दोगे मार्क्स कट हो जाएगा. फाइन. सो दिस इज गोइंग टू मेक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y is going to make permease enzyme and A is going to make trans acetylase enzyme. एंड इनके अलग अलग फंक्शंस है. तो ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर जो है ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए है और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इसके एमआरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. सो दिस इज द रेगुलेटरी सीक्वेंस व्हिच इज गोइंग टू मेक एमआरएनए एंड देन अ रिप्रेसर प्रोटीन. वो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को बाइंड होगा. ऑपरेटर क्या है? अ सीक्वेंस व्हिच इज गिविंग अ पैसेज टू आरएनए पॉलीमरेज टू मूव एंड इट विल बी एबल टू रेगुलेट the transcription of these structural genes. बट रिप्रेसर ने आके ऑपरेटर को बाइंड कर दिया और एक हर्डल आ गया आरएनए पॉलीमरेज को. आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ा और स्ट्रक्चरल जीन ने अपना काम नहीं किया. सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ. जैसे ही लैक्टोज एनवायरमेंट में आया बैक्टीरिया के, तब लैक्टोज ने जाके रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर लिया एंड ड्यू टू द चेंज इन द शेप ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन ये जो है रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को बाइंड नहीं हुआ. बाइंड नहीं होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव हुआ एंड रिस्पेक्टिव जीन्स बने, उन्होंने रिस्पेक्टिव काम करना शुरू कर दिया. और ये तब तक स्टार्ट रहेगा जब तक लैक्टोज मीडियम में रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट लैक ओपेरॉन. घबराने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टॉपिक. आप वापस से वीडियो देखिए, समझ नहीं आता है तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, देन गो एंड रीड इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बी सेफ एंड गुड बाय.